This is Fetzer here. Welcome you all to study from home. Let's start with our classic social science, geography portions. Already we have talked about the chapter number 7, right? Our country, India, right? Along with it, right? We will take chapter number 8, right? That is India, climate, vegetation, and wildlife. So, in this chapter, we are going to discuss about the climate of our country, right? And what kind of climate we experience, right? As well as what kind of wildlife that exists in our country, right? Along with it, what kind of plants, right? Or you can say crops, grains, right? Are grown in our country. So then we are going to discuss. So let me start with you read newspapers daily and watch on TV or hear others talking about weather. So ज़्यादातर weather के बारे में काफी सारे लोग एक दूसरे के साथ क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, right? Now you must know that weather is about day-to-day changes in the atmosphere, right? So weather क्या कहते हैं, right? Underline these words, right? You must know them. आपको ये जानना है that what do you mean by weather? That weather is about day-to-day changes in the atmosphere. Means every day या फिर ये कह सकते हैं कि nowadays we experience cold, right? In the evening or in the morning as well as in the afternoon, right? We experience summer, we feel humid, right? So यानी हमें गर्मी लगती है, right? तो ये सारा क्या फील करते हैं, हम समर फील करते हैं, right? We are experience two weather conditions, right? So such a change in a day is known as weather, right? Whereas it includes changes in temperature, rainfall and sunshine etc. यानी हो सकता है कि कहीं पे क्या हो रहा है, रेन गिर रही है या फिर कहीं पे गर्मी पड़ रही है, sunshine. For example, as such it may be hot or cold, as I have told, sunny or cloudy. यानी ठंड भी हो सकती है, गर्मी भी हो सकती है. sunny और cloudy means कि वो अच्छी खासी यानी सन रेज गिर रही है या फिर हो सकता है कि एक रेनी एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाता है, that is cloudy. windy और cloud यानी बहुत हवाएं चल रही है या फिर बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है. You must have noticed that when it is hot continuously for several days, you don't need any warm clothing. यानी जब यानी गर्मी पड़ती है तो ज़्यादातर क्या होता है that if someone is wearing right hot या फिर warm clothes right during winter seasons, but when it continuously temperature is increasing means कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है then such persons avoiding wearing such warm clothes यानी वो फिर वो गर्म या फिर वो warm clothes है उसको क्या नहीं करते, पहनना छोड़ देते हैं. So you also like to eat or drink cold drinks. जब गर्मी पड़ती है तो हमें यानी ठंडा ठंडा यानी जैसे कि आइसक्रीम है राइट या फिर कोल्ड ड्रिंक्स है जो हमें यानी इनर हेल्थ को क्या दे, थोड़ा बहुत ठंडक दे, वो चीज़ें खाना पीना हम बहुत ही पसंद करते हैं. In contrast, there are days together you feel cold without woolen clothes when it is very windy or chilly. You would like to have something hot to eat. लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो जाता है that कि जब कभी ठंड की सीजन नहीं चल रही है राइट तो फिर भी कई कई टाइम पे यानी ऐसा होता है कि हवाएं अच्छी खासी चल रही है जिसके चलते हमें क्या फील होती है, ठंड महसूस होती है राइट. सो जिसके चलते हम क्या खाना पसंद करते हैं, कुछ गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं यानी कुछ स्पाइसी या फिर हॉट ऐसी चीज़ें हम खाना पसंद करते हैं. क्यों? बिकॉज देखिए उससे हमारी जो बॉडी है उसका टेम्परेचर क्या हो, अप हो, जिसके चलते हमें ठंड कम लगे. So broadly the major seasons recognized in India are right. So here you can be asked the question that which seasons experience in our country, right? So you have an answer to that question that from here to here, right? That can be asked in 1 or 2 marks questions. So the major seasons recognized in India, right? So India में हम कौन-कौन से seasons को experience कर रहे हैं? Cold weather season that is known as winter, right? It starts from December to February. Hot weather season, right? That summer
March to May. Southwest monsoon season, that is rainy, and it experience from June to September. And seasons of retreating monsoon, यानी autumn, that is start from October to November. यानी retreating monsoon means कि जब monsoon के जाने का टाइम हो जाता है उसके बाद जो टाइम आता है that is autumn, right? That start from October to November, right? So ये जो 4 सीजन्स हैं वो हम हमारी कंट्री में क्या करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, अंडरस्टैंड? एंड व्हाई वी आर फीलिंग और व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग सच वेदर और सच क्लाइमेटिक कंडीशन या फिर सच सीजन इन आवर कंट्री, देन ऑलरेडी वी हैव लर्नड इन चैप्टर नंबर 2 दैट हाउ द ग्लोब्स और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर राइट रोटेट्स और tilts toward the sun, right? And how it convert, right, summer solstice and winter solstices, right? So because of that revolution, right, or because of our earth revolution, right, so we are experiencing such seasons in our country too, right? Now so here the brief descriptions or detailed descriptions of cold weather season, right, or winter. During the winter season, the sun rays do not fall directly to the region, as we already have discussed in the second chapter, right? कि जो sun की जो rays है वो directly यानी कहाँ पे नहीं पड़ती है, और हमारा जो यानी हम जिस region में आते हैं वहाँ पे पड़ती, वहाँ पे गिरती नहीं है. For example, चलो हम बात करेंगे जैसे कि suppose ये globe है, right? Then here is north, here is south, ईस्टर्न पोर्शन है, वेस्टर्न पोर्शन, या फिर यहाँ पे जो सन है, राइट, और अगर हम आए हुए हैं, राइट, कहाँ पे, वेस्टर्न पोर्शन पे, तो सन यहाँ पे गिर रहा है, देन या वो जो सन की जो रेज है वो यहाँ पे आएगी, देन यहाँ पे समर एक्सपीरियंस होगा, वेदर यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस होगा, विंटर एक्सपीरियंस होगा, राइट. अब बात आती है अर्थ के रिवॉल्यूशन की, तो जब सन की तरफ क्या आ जाता है, वेस्ट आ जाता है, देन यहाँ पे क्या फील होता है, समर फील होता है, और यहाँ पे क्या फील होता है, विंटर फील होता है, राइट. और उसी टाइम पे यहाँ पे स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन को क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस किया जाता है. दैट यू कैन सी इन योर टेक्स्ट बुक ऑफ जियोग्राफी इन चैप्टर नंबर 2, राइट. सो प्रॉपर सीजन या फिर जो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ है वो वहाँ पे बताया गया है, देन where it is already explained about the season change. So as a result, the temperature are quite low in the northern India, और जिसके चलते जो northern India है वहाँ का जो temperature है वो क्या होता है, down जाता है. Hot weather season or summer. In the hot weather season, sun rays more or less directly fall in the region, यानी ज़्यादा या फिर कम वो जिस region में पड़ती है, जिसके चलते वो particular region में क्या feel होता है, summer feel होता है. As just now I have explained by the diagram. टेम्परेचर becomes very high, जो टेम्परेचर यानी डायरेक्टली जो सन की रेज है वो एक पर्टिकुलर रीजन में पड़ती रहती है, देन वहां का जो टेम्परेचर वो क्या होने लगता है, हाई होने लगता है. हॉट एंड ड्राई मींस कॉल्ड लू. सो जिसके चलते नाउ हियर व्हाट इज कॉल्ड लू, राइट. सो जो हॉट एंड विंड ड्राई मींस, राइट, यानी जब समर होता है तो एक गर्म हवाएं हमें लगती है, राइट, और वो बहुत जोर शोर से एक विंड के फॉर्म में होती है, विंड होती है, राइट. सो वो जो हवाएं गरम और जो सूखी हवाएं जो होती है जिसको क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है. ब्लो ड्यूरिंग द डे, और वो डे टाइम में क्या होती है, फील की जाती है या फिर एक्सपीरियंस की जाती है. Now, so let me see, right, let's have fun. People in all parts of our country drink delicious cool drinks called sherbet made from fruits available in their region. यानी जब यहाँ पे देखो, राइट, सन बताया हुआ है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पोर्शन में क्या इंडिकेशन है, दैट इट इज एक्सपीरियंसिंग द समर सीजन, राइट. सो जब समर सीजन होता है देन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, डिलीशियस जो शरबत होते हैं, जूसेस होते हैं, उसको क्या करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते हैं. They are excellent t-shirt quenchers and protect our bodies from the ill effect of the harsh loo. और वो लोग क्या करते हैं, excellent यानी जो t-shirts होते,
प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम हीट इफेक्ट ऑफ द हार्श लू। तो ये जो शरबत यानी पीते हैं, ये जो जूसेस पीते हैं, राइट, उससे होता क्या है, दैट जो लू हमें लगती है, राइट, जिसके चलते हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, एकदम हाई हो जाता है, जिसके चलते यानी हमें फीवर हो सकता है, हम बीमार हो सकते हैं, राइट, और डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज आ सकती है, जिसके चलते और ये जो पर्टिकुलर ड्रिंक्स है जिससे हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। कैसे हेल्प मिलती है, दैट कि ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा करने से हमें हमारी बॉडी को क्या करते हैं, रोकते हैं, राइट। सो हमारा जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो मेंटेन रहता है। हैव यू ट्राइड शरबत मेड फ्रॉम रॉ मैंगो, यानी कभी आपने ट्राई किया है दैट जो रॉ मैंगो है, राइट, उसमें से क्या बनाया जाए, शरबत बनाया जाए, बेर, लेमन, थमड़ी, कोकुम, फालसा, वाटरमेलन एंड बटरमिल्क मेड फ्रॉम कर्ड्स, यानी लस्सी की बात हो रही है, डिफरेंट डिफरेंट वाटरमेलन के जूसेस है, फालसा, राइट, वन काइंड ऑफ fruits it is also, so कोकम, राइट, that you are knowing, lemon juice, right, ये सारी की सारी चीजें आपको पता ही है। फॉर एग्जांपल छाछ, राइट, और मट्ठा, मोड़ी, छाछ एटसेट्रा। मैंने एक बनाना है मैंगो मिल्क शेक्स टू, यानी ज्यादातर जब हम हॉट सीजन यानी समर सीजन में होते हैं, ये सारी की सारी चीजों को क्या करते हैं, पीते हैं, ड्रिंक करते ही है, राइट, टू मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, राइट, और you can say that by protecting ourselves from the harsh loo condition of. Now here that we can see, right, cloudy, right, after a hot summer the first rain brings much joy. All our languages have melodious songs on rains, यानी जब बहुत यानी गर्मी पड़ने के बाद समर जब गुजरता है तो उसके बाद क्या आता है, मॉनसून आता है, राइट। सो जब मॉनसून आता है देन लोग उसको क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, देन वेलकम करते हैं, देन उसके लिए नए नए सॉन्ग्स क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, राइट। सो दे साउंड हैप्पी एंड ब्रिंग चीयर, और वो यानी इतनी गर्मी के बाद जब बारिश की जो बूंदें यानी जमीन पे पड़ती है, हमारे ऊपर पड़ती है, देन एक अजीब सी यानी क्या होता है, ठंड का एक्सपीरियंस होता है, या फिर एक अजीब से वेदर का एक्सपीरियंस होता है, जिसके चलते हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, जिसको हम बहुत ही चीयर करते हैं या फिर सेलिब्रेट करते हैं। लर्न 2 songs on rain and sing them together, यानी 2 सॉन्ग किसके लिए गाओ, रेन के लिए, यानी बनाओ या फिर गाओ, देखो और गाओ। राइट और collect 5 poems on rains, right, ask your friends, neighbors and family members for names for rains and other seasons in different languages. For instance, यहाँ पे वर्षा हिंदी, यानी हिंदी में क्या कहा गया है, वर्षा कहा गया है, उर्दू में मॉनसून को क्या कहा जाता है, बारिश, या फिर रेन को बारिश कहा जाता है, मराठी में पॉस एंड बंगाली में वर्षा, राइट। सो सच नेम इज गिवन इन अ different languages for rains, right. So it's one kind of activity you can see, right, that will give an idea or understanding that what other names of rains that are called in different parts of our country, right, as well as we have came to know by that phone that after summer what is the next season that we experience, it is monsoon. Now southwest monsoon season or rainy season, southwest, right. So यहाँ पे जो बात हो रही है क्लियर, ये साउथ, यहाँ पे वेस्ट एंड यहाँ पे साउथ, तो यहाँ की बात हो रही है साउथ वेस्ट, वहाँ पे रेनी सीजन। अब हमारी कंट्री का यानी जो ये सीजन भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, राइट, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन एंड द लोकेशनल पॉइंट ऑफ आवर कंट्री ऑन अ ग्लोब, राइट। सो लोकेशनल पॉइंट तो हमने पिछले चैप्टर में बात कर ली है, देन फर्दर इफ यू वांट टू नो दैट यू just read that particular portion as well as along with it, right, see the chapter number 2, right, where the revolution of our earth, right, diagram is given. This season is marked by the onset and advance of monsoon, यानी ये जो साउथ में मॉनसून में जो रेनी सीजन जो होती है, तो साउथ में से वो क्या होती है, वहाँ पे एक तरीके से माहौल बनता है, वहाँ से वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, राइट। तो वेस्ट में लिटरली वो क्या होता है, एडवांस होता है, यानी वो एक इंडिकेशन है दैट कि अब नेक्स्ट क्या आने वाला है, मॉनसून आने वाला है, राइट। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल
टवर्ड्स द लैंड, यानी जो हमारा अरेबियन सी है, राइट, वहां से, राइट, एंड बे ऑफ बंगाल, तो जो हवाएं बहती है, राइट, वो किसकी तरफ बहती है, यानी ये जो सी है उसकी तरफ से यहाँ से बहती है, राइट, और इस तरफ आती है। दे कैरी मॉइस्चर विद देम, और उनके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर मींस एक ठंड होती है, कोल्ड होती है, राइट, दे कैरी मॉइस्चर विद देम एंड दिस मींस स्ट्राइक्स द माउंटेन वेयर इज रेनफॉल ऑक्योर, और जब ये जो हवाएं होती है वो क्या करती है, माउंटेन्स के साथ एक तरीके से टकराती है या फिर एक तरीके से वो रेन लाती है, राइट। सो कह सकते हैं कि साउथ में जो बे ऑफ बंगाल और जो अरेबियन सी है, राइट, जो पूरा यानी एक साउथ वेस्ट पोर्शन की बात की है, वहां पे उस ओशन में से एक क्या होता है, एक मोमेंट क्रिएट होता है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, जिसके चलते वो जो हवाएं होती है वो क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, बिल्कुल कोल्ड हो जाती है, वो इतनी कोल्ड हो जाती है कि कोल्ड से वो क्या होता है, एक वो वाटर फॉर्मेशन होता है, और जब वाटर फॉर्मेशन होता है तो वो जो बादल होते हैं वो उनका क्या नहीं झेल पाते, एक तरीके से वेग को झेल नहीं पाते, राइट, सो जिसके चलते क्या होती है, रेन होती है, राइट, एंड यू ऑल आर नोइंग अबाउट द रेन साइकिल, दैट हाउ रेन इज occurred, right, maybe it will come next too. So again, that is over. Now seasons of retreating monsoon, right, autumn, right, अब monsoon भी चला जाता है और monsoon के बाद क्या आता है, autumn आता है। अब autumn कौन सी season है, let me see, यानी जब we move back from the mainland to Bay of Bengal, अब यानी जो यानी पहले क्या हुआ था, जहां पे हमने बात की थी वो, राइट, कि यहाँ से जो हवाएं हैं, राइट, बे ऑफ बंगाल से वो किसकी तरफ जा रही है, अरेबियन सी की तरफ जा रही है। अब यहाँ से राइट, सो कुछ इस तरीके से वेस्ट पोर्शन, ईस्ट पोर्शन, नॉर्थ पोर्शन है, साउथ पोर्शन। अब जब यहाँ से हवाएं जाती है इस तरफ, ये रीजन की तरफ, तो यहाँ से जो मॉनसून स्टार्ट होता है ना, राइट, वो कहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, धीरे धीरे ये पूरे पोर्शन पे एक्सपीरियंस होता है, साउथ वेस्ट, राइट। सो लेकिन जब बारी आती है ऑटम या फिर विंटर की, तो वो एक्सपीरियंस होता है कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ, राइट। सो जिसके चलते अब यहाँ की जो यानी हवाएं हैं वो कहाँ पे चली जाती है, लैंड की तरफ। अब यहाँ पे जो यानी मॉनसून जो हवाएं यहाँ पे गई थी, अब यही हवाएं, राइट, विंटर सीजन में कहाँ पे आती है, यहाँ से बढ़ती है, राइट। अब ये बढ़ने वाला कुछ ऐसा नहीं होता है, जस्ट ओनली द रेवोल्यूशन ऑक्योर, राइट। जब रेवोल्यूशन ऑक्योर तो पहले क्या था, दैट यहाँ से जो हवाएं यहीं बहती थी, लेकिन जब ये रिवॉल्व होता है तो ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ, तो ये जो नॉर्थन वाली हवाएं हैं वो इधर जाती है, जिसके चलते, राइट, क्या फील होता है, धीरे धीरे विंटर फील होता है, या फिर ऑटम, यानी ऑटम के बाद क्या है, विंटर ही आएगी। सो दिस इज द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून, यानी जब मॉनसून को अलविदा कहने वाली जो होती है, दैट the southern parts of India, particularly Tamil Nadu and Andhra Pradesh, receive rainfall in this season. ये particular season में जो साउथ के जो एरियाज है वहीं पे क्या फील होता है, मॉनसून फील होता है। However, the climate is about the average weather conditions which have been measured over many years. So ये जो कंडीशन है यानी वो काफी सालों तक एक्सपीरियंस की गई है, या फिर हर साल या फिर काफी सालों से एक यही टेम्परेचर या फिर एक यही ट्रेडिशन चलता आ रहा है, दैट इज नोन एज क्लाइमेट। सो पहले हमने देखा था वेदर, राइट, इट्स अ डे टू डे कंडीशन, राइट, लेकिन जहां पे बात आती है क्लाइमेट, तो ये जो क्लाइमेट जो है वो इट्स अबाउट एवरेज वेदर कंडीशन, यानी हर दिन हर एक पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर हर रोज वेदर अगर एक जैसा ही रहता है, राइट, फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन दैट particular season or that particular weather is known as climate. Understand? यानी ये कह सकते हैं that के already हमने seasons देखे, that के particular month वहाँ पे mention किए
सो वो पर्टिकुलर मंथ में वहां पे क्या फील होता है, मॉनसून ही फील होता है, समर ही फील होता है, विंटर ही फील होता है या फिर ऑटम फील होता है, तो वो क्या कहा जाएगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कही जाएगी। सो द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मॉनसून टाइप, यानी ज्यादातर इंडिया का जो क्लाइमेट वो मेंशन किया गया है कैसे मॉनसून टाइप। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन दिस here to here and afterwards. So monsoon is taken from the Arabic word monsoon, right? So ये जो monsoon यानी हमारे जो कंट्री का जो सीजन है या फिर जो एक तरीके से क्लाइमेट है वो किससे डिस्क्राइब किया गया है, मॉनसून से डिस्क्राइब किया गया है। मॉनसून जो वर्ड आया है वो कहाँ से आया है, देखिए मॉनसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड that is monsoon. You may be aware of it, right? Those who have taken Arabic subject or those who are knowing Arabic, that is, they are knowing that monsoon is called in Arabic monsoon, which means season, यानी मौसम, right? Generally हम बोलते हैं मौसम. So monsoon, which means seasons. Due to India's location in the tropical region, most of the rain is brought by the monsoon winds. यानी हमारी कंट्री का जो कंडीशन है वो जो लोकेशन है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिकल रीजन में है, जिसके चलते जो विंड है, हवाएं हैं, वही क्या लाती है, मानसून लाती है, और वही जो हवाएं हैं वो क्या लाती है, विंटर भी क्रिएट करते हैं। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन रेन्स, राइट? सो हियर यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन, राइट? एग्रीकल्चर इन इंडिया डिपेंडेंट ऑन लैंड, देन यू कैन से रेन। गुड मानसून मींस एडेक्वेट रेन एंड अ ब्यूटीफुल क्रॉप। अगर अच्छी बारिश होती है दैट जो क्रॉप्स होंगे वो अच्छे ग्रो होंगे। नाउ सो हियर ऑन द बेसिस दैट अगर अच्छी बारिश होती है देन अच्छा क्रॉप्स होगा, देन उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन यहां पे व्हाट वुड हैपन इफ मॉनसून शुड वीक और इवन वर्स फेल टू ऑक्यूर वन ईयर, यानी अगर एक साल में अगर मॉनसून है वो क्या होता है, खराब रहता है या फिर अच्छा रहता नहीं है, then what will happen, right? So take the correct answer. Crops will be affected or not affected, right? The level of water in well will come up or go down. Then we can say easily that crops will be affected, right? The level of the water well in will go down, as well as summer will be longer, right? क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, राइट? समर के बाद ही बारिश आती है, अगर बारिश नहीं आ रही है तो हम और ज़्यादा गर्मी फील करेंगे या फिर और ज़्यादा हमें समर फील करना पड़ेगा। और बारिश नहीं हो रही है जबकि जो वेल का पानी है वो पिछले साल जो यूज़ किया है अब उसमें यानी वो जितना स्टोर है जाना चाहिए उतना जा नहीं रहा है, राइट? इसमें इम्पोर्ट नहीं हो रहा है, सो जिसके चलते क्या होगा, शॉर्टेज महसूस होगी एंड क्रॉप्स विल बी अफेक्टेड टू। So let us talk about this paragraph and afterward I conclude myself. The climate of place is affected by its location, altitude, distance from the sea and relief, right? Underline this, right? Climate को कौन-कौन सी चीजें अफेक्ट करती है, लोकेशन यानी वो पर्टिकुलर किस लोकेशन पे है, राइट? बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ, राइट? एल्टीट्यूड्स, सो now distance from the sea से उसका distance कितना है and relief, right? So therefore we experience regional differences in the climate of India, और इसके चलते यानी कहीं दूसरे स्टेट में अगर विंटर महसूस हो रही है तो वहीं पे किसी दूसरे स्टेट में क्या फील होगा, समर फील होगा, राइट? जैसे कि हम बात कर रहे हैं साउथ में, राइट? और नॉर्थ में, तो जब नॉर्थ में क्या फील होता है, विंटर फील होता है, एट द सेम टाइम साउथ में क्या फील होगा, थोड़ा बहुत समर फील होगा या फिर पूरा का पूरा क्या फील होता है, समर फील होता है, अंडरस्टैंड? और वहीं पे एक तरफ वेस्ट और ईस्ट में स्प्रिंग एज वेल एज ऑटम क्या होता है, फील होता है, राइट? जस्ट इट्स डिपेंड्स ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ। So Jaisalmer and Bikaner in the desert of Rajasthan are very hot, while Dras and Kargil in Jammu and Kashmir are freezing cold. यानी जो जैसलमेर है और बीकानेर है जो राजस्थान में आए हैं वो बहुत ही क्या है, हॉट है, बिकॉज ऑफ द वहाँ पे क्या है, डेजर्ट है इसके लिए, राइट? और वहाँ डेजर्ट तो वैसे जम्मू में भी है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो कैसे रहती है, हार्श कंडीशन रहती है, बारिश ज़्यादा नहीं रहती है, सो द रीजन वी एक्सपीरियंस
बात हो रही है द्रास एंड कारगिल, राइट, वो भी एक यानी कोल्ड डेजर्ट है, राइट. सो द्रास एंड कारगिल, जम्मू एंड कश्मीर आर फ्रीजिंग कोल्ड. कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट, यानी वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और इतनी ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है, और वहाँ पे कभी भी बारिश हो सकती है और कभी भी यानी ठंड पड़ सकती है, कभी भी गर्मी लग सकती है. मीन्स एक मॉडरेट क्लाइमेट को फील करते हैं, राइट, बिकॉज इट्स अ कोस्टल प्लेसेस. कोस्टल प्लेसेस मीन्स के वो जुड़े हुए होते हैं ओशन के साथ या फिर सी के साथ. दे आर neither too hot nor too cold. Being on the coast, these places are very humid, right? Mawsynram in Meghalaya receives the world's highest rainfall, right? So here underline this, right? Mawsynram, right? So ये particular places कैसे होते हैं? Humid होते हैं, right? So here Mawsynram in Meghalaya, right? So underline this, right? Receive the world's highest rainfall. While in the particular year it might not rain at all in Jaisalmer, राजस्थान. यानी एक तरफ इंडिया का एक जगह है जो मेघालय यानी है, वहाँ पे आया है मौसिनराम कि वहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश गिरती है पूरे वर्ल्ड के मुकाबले, और वहीं पे यानी ऐसी जगह है, राइट, जैसलमेर, राइट, कि वहाँ पे कभी कभार बारिश होती भी नहीं है पूरे साल में, राइट. सो ये सारे डिफरेंसेस हम देखने को मिलते हैं. क्लियर? लेट्स गो ऑन मैप इंडिया, राइट. Locate the places mentioned in the paragraph, right? So here places जो mention किए गए हैं वहाँ पे आप right mention कर सकते हो, right, according to the its locational degree which are given on chapter number 7, right? So that's all for today. Next we will discuss in the next class. Till then, take care of yourself. Thank you.